Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uzair Ali, and currently I'm working as project coordinator at PASA HealthNet Echo Pakistan. With me is our IT professional Haris Maris. We will go with usual round of introduction. Uh, Dr. Kainat, would you please like to introduce yourself? Assalamu alaikum. My name is Dr. Kainat, and currently I'm working as a medical officer in PASA Trust Clinic, Gujranwala. Thank you very much, ma'am. Dr. Yunus Ahmed, please अपना introduction करवाइएगा, sir. All right. Dr. Ehsanul Haq Saab. Sir, would you like to introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसान है और मैं शिफाक मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में फैमिली मेडिसिन में रजिस्ट्रार हूँ। Please wait for a while. We are facing a technical issue. All right, Dr. Anwar Ali Bhutta, would you please like to introduce yourself? I am Dr. Anwar Ali Bhutta from Okara. I am primary care physician. Thank you very much, sir. Dr. Sultan Ahmed Chandio Saab, would you like to introduce yourself? Okay. Dr. Iftikhar Hussain Sahab, would you like to introduce yourself? All right, Dr. Amna Askar Saiba, would you like to introduce yourself? I'm Dr. Amna. I'm from Lahore. I work as Echo coordinator and lead PIAM as well. Thank you very much, ma'am. I would like to request Dr. Asad Chaudhry Saab to kindly introduce himself. Assalamu alaikum, Asad Chaudhry. I welcome all of you for this session, and I'm really grateful to Dr. Ali Haider, who is joining from Larkana for his talk today. I'm director of Parsa HealthNet Echo Pakistan, and it's heartening to see all of you on this forum, and especially in these days where there is a bombardment of webinars from left, right, and center, but our activity is hanging on, and I would really like to know at the end of this session and even later on the WhatsApp group or through a direct message how further we can improve the number of spokes. हमारा जो focus है वो primary care physicians है. We are not after medical specialists or gastroenterologists. हम प्राइमरी केयर में रूरल एरियाज में फार फ्लंग एरियाज में काम करना चाहते हैं, और उसमें मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कैन ब्रिंग अस इन कांटेक्ट विद दीज प्राइमरी केयर फिजिशियंस, कोई आपके जानने वाले हैं जिनको आप जानते हैं जो कीन लर्नर्स हैं, तो we will reach out to them with your reference or some way. So thank you very much. Over to you, Zaz. Thank you very much, sir. Now I would like to request our worthy speaker, Dr. Ali Haider Saab, to kindly introduce himself. And sir, the mic is over to you. Please carry on with your presentation after that. आवाज आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है।
जी उजैर, अब आपको मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्लियर प्लीज? जी सर, हमें आपकी आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह पाक के नाम से। मैं डॉक्टर अली हैदर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाणका मेडिकल कॉलेज, लाड़काना। मैं डॉक्टर असद चौधरी साहब और पारसा हेल्थ नेट इको का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज आप लोगों के साथ हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन चिल्ड्रेन डिस्कस कर सकूं। दो टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। कोशिश होगी कि मैं इसको ऐसा आपको बयान कर सकूं कि आप लोग इसमें से कुछ ये फ्रूटफुल साबित हो सके। ये आउटलाइन है मेरे टॉक की। जैसे आप लोगों को इल्म है कि इस वक्त मोस्ट कॉमन क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन दुनिया में वो हेपेटाइटिस बी है। 240 to 257 मिलियन पीपल जो है वो इस वक्त क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहे हैं। इनमें से अराउंड अबाउट 65 मिलियन विमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है और इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है वो एटलीस्ट 50% केसेस का जिम्मेदार है इन अडल्टहुड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के। सो इसलिए अगर हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं तो 50% केसेस ऑफ अडल्ट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विथ इट्स सीक्वेली। प्रेगनेंसी से पहले प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग होनी चाहिए और हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए अगर ज़रूरी है। कोई फीमेल है और नियर फ्यूचर में वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उनका सरफेस एंटीजन टेस्ट होना चाहिए। अगर वो इम्यून नहीं है और इन्फेक्टेड नहीं है तो उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो जो एचबीवी सीरोलॉजिक मार्कर्स हैं वो सारे होने चाहिए। एंटी एचबीवी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कोशिश करें बीटा एचसीजी टेस्ट एडवाइस करें कि टू रूल आउट के प्रेगनेंसी नहीं है क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के। क्राइटेरिया जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट का शुरू करना चाहिए चाइल्ड बियरिंग एज विमेन में वो सेम ही है एज इन जो है जनरल पॉपुलेशन। अगर माइल्ड डिजीज है तो डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट टिल आफ्टर प्रेगनेंसी। एडवांस फाइब्रोसिस और सिरोसिस है तो उनको ट्रीट करें और ट्रीटमेंट पेगलेटेड इंटरफ्रॉन या टेनोफेविर के साथ कर सकते हैं एज पर इंडिकेशन। जो विमेन ऑन एंटीवायरल ट्रीटमेंट हैं वो स्टॉप करना चाहती हैं तो कंसीव मेक श्योर कि केयरफुल फॉलो अप उनका होना चाहिए कि फेलियर या प्रोग्रेशन ना हो डिजीज का। ईजल के मुताबिक चाइल्ड बियरिंग एज है विदाउट एडवांस फाइब्रोसिस है और प्रेगनेंसी इन फ्यूचर प्लानिंग है कि ट्रीटमेंट डिले कर सकते हैं माइल्ड केसेस में। मगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, एक्टिव है, एडवांस फाइब्रोसिस या सिरोसिस है तो उनको आप ट्रीट करें और ट्रीटमेंट टीडीएफ के साथ, टेनोफेविर, डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट के साथ। अगर प्रेग्नेंट लेडी है ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है तो उसको आप टेनोफेविर अगर वो ले रही हैं तो उनको कंटिन्यू करें। अगर वो अदर देन टेनोफेविर है तो उसको स्विच टू टेनोफेविर करें, टीडीएफ करें। हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन सब के सब सरफेस एंटीजन टेस्ट होने चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और अगर वो इम्यून भी नहीं है, इन्फेक्टेड भी नहीं है, वैक्सीनेटेड भी नहीं है तो उनकी वैक्सीनेशन करनी चाहिए प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन सेफ है। जो भी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव विमेन है उनको
एज सून एज पॉसिबल हेपेटोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, बिकॉज उस एक्सपर्ट की फिर ये जिम्मेदारी है कि वो उनको एजुकेट करे, डिजीज मैनेजमेंट प्लान बताए और ऑनगोइंग केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी बताए, और वर्कअप ऑफ हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन करे और ट्रेस करे क्लोज कॉन्टेक्ट्स को कि उनमें से किसी को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, अकॉर्डिंगली डील करें। और सरफेस एंटीजन पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज को जॉइंटली डील करना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन और एक्सपर्ट को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एचबीवी इन्फेक्शन का इफेक्ट प्रेगनेंसी के ऊपर क्या है? इनमें एक्यूट एचबी इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जब भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी हो कोशिश करें एक्यूट लिवर डिजीज इन प्रेगनेंसी उनको रूल आउट करें, और हायर इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन देखा गया है एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी में। सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो उनको ट्रीट कर सकते हैं टीडीएफ, या खुदा न खास्ता उनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है उन मदर्स में जेस्टेशनल डायबिटीज, एंटीपार्चम हेमरेज और प्रीटर्म डिलीवरी एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन ज्यादा है। प्रेगनेंसी के इफेक्ट ऑन एचबीवी इन्फेक्शन पे क्या है? आप लोग जानते हैं बेहतर कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी अल्ट्रेशन होती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ फीटस। इसकी वजह से इम्यून रिस्पांस डिप्रेस हो जाता है, डीएनए लेवल बढ़ सकता है, एएलटी नॉर्मल या जस्ट अबो नॉर्मल हो सकते हैं। जैसे डिलीवरी कंप्लीट होती है यार तो इम्यून सिस्टम रीस्टोर होता है, हेपेटाइटिस फेलियर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड एएलटी एंड रिडक्शन ऑफ डीएनए। इसके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लोज मॉनिटरिंग करें, अगेन एंड अगेन क्लोज मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। अगर किसी को एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी प्रेगनेंसी में है तो कैसे ट्रीट करना चाहिए? इंटरफ्रॉन तो बिल्कुल भी कंट्राइंडिकेटेड है, और अगर माइल्ड डिजीज है तो आप डिले कर सकते हैं। अगर सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो टीडीएफ के साथ ट्रीट कर सकते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस है तो टीडीएफ दे सकते हैं। अगर पेशेंट ऑलरेडी न्यूक्लियोसाइड एनालॉग पे है और वो टीडीएफ नहीं है तो उसके तरफ स्विच करें। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ये क्या है? आजकल ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पहले वर्टिकल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, मगर नाउअडेज जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन यूज होता है। तो इनके 3 टाइप्स हैं, आइदर ट्रांसप्लेसेंटा इंट्रायूट्राइन ट्रांसमिशन हो, नेटल इंट्रापार्चम ट्रांसमिशन हो ड्यूरिंग डिलीवरी या एट टाइम ऑफ बर्थ, या पोस्ट नेटल पोस्टपार्चम ट्रांसमिशन हो। जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसमिशन है वो प्लेसेंटा में अगर ब्रीच हो, लीकेज हो तो उसके थ्रू हो सकती है, या सेल्यूलर प्लेसेंटा जो थ्रू ट्रांसमिट हो एचबीवी इन्फेक्शन, या इन्फेक्टेड पार्टनर्स में oocytes या स्पर्म्स में जो है डीएनए मौजूद हो, या वजाइनल सीक्रेशंस मदर जिनमें वायरस मौजूद हो, वो असेंडिंग इन्फेक्शन करा सकते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी एंड एट टाइम ऑफ बर्थ मैटरनल सर्वाइकल सीक्रेशंस या मैटरनल ब्लड की तरफ एक्सपोजर हो बेबी का, उसके थ्रू भी ये हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी क्रैक्ट या ब्लीडिंग निपल्स हैं या कांटेक्ट है मदर के साथ, उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स क्या है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के? वो एक तो डीएनए लेवल है जो लेडी का है, that more than 2 lakh international unit per ml, e antigen positivity हो मदर में, या surface antigen titer more than 4 log हो, या specific pregnancy related complication हो like preterm delivery है, prolonged labor engine में ट्रांसप्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होते, या
प्रीवियस सिबलिंग्स में इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस फेल्यूर हो, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर्स कितनी परसेंटेज है? आपको पता है कि इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस यूज करते हैं बेबीज में। अगर ये इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस ना हो तो ई एंटीजन पॉजिटिव और ई एंटीबॉडी नेगेटिव केसेस मदर्स में 70 to 90% केसेस में फ्रॉम मदर टू बेबीज HBV इन्फेक्शन हो सकता है। दोनों नेगेटिव हो तो 25% केस है। अगर सिर्फ ई एंटीबॉडी पॉजिटिव हो तो 12% केस है। तो अगर प्रोफाइलेक्सिस आप देते हैं तो आप 70 to 90% केसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं MTCT प्रिवेंशन के? एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीवायरल थेरापी एज अ प्रोफाइलेक्सिस या एज अ ट्रीटमेंट जरूरत है तो दे दें। इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस करें एट बर्थ ऑफ बेबीज और पोस्ट वैक्सीनेशन सीरोलॉजिक टेस्टिंग करें ऑफ इन्फेंट्स। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रिवेंशन के लिए जो भी पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स हैं, उन सब को आप पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस दें एट बर्थ, स्पेसिफिकली विद इन 12 hours of birth. Passive immunization through immunoglobulin and active immunoprophylaxis through vaccination series. ये हमारे मुल्क में अक्रॉस द कंट्री हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शेड्यूल है दूसरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ। और क्या जो 70 to 90% केसेस में हम विथ इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस केसेस को प्रिवेंट करते हैं, क्या उनका फेल्यूर है? आंसर है यस। 3 to 13% बेबीज में ये इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस जो हम पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन के सूरत में देते हैं उनका फेल्यूर है। वो क्यों है? वो ड्यू टू इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। वो कब हो सकता है? जब हाई मेटरनल वायरल लोड हो या मेटरनल ई एंटीजन पॉजिटिव केस हो। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? थ्रू एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस के थ्रू। वो कब देनी चाहिए? वो 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इट मींस 3rd ट्राइमेस्टर में देने चाहिए। कब, कैसे, क्यों? जब वायरल लोड मोर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर हो, आपने DNA लेवल करवाया प्रेग्नेंट लेडी का एट द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, उनका लोड मोर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml है या सरफेस एंटीजन मोर देन 4 log है, तो ये इन सब को एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस के अलावा आप इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीनेशन सीरीज करेंगे। क्या गाइडलाइंस से हाई वायरल लोड अगर प्रेग्नेंट लेडी में हो तो एंटीवायरल थेरापी शुरू करने के SSLD के मुताबिक यही सरफेस एंटीजन पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी विथ DNA लेवल मोर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और ईजल ने एक चीज इसमें ऐड की है कि मोर देन 4 log सरफेस एंटीजन लेवल, तो आप एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस उन केसेस में शुरू करें। कब? एट 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। किस ड्रग के साथ? टेनोफोविर के साथ, TDF के साथ, स्पेसिफिकली TDF के साथ। और कब तक कंटिन्यू करनी चाहिए? अप टू 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। टेल्बिविडीन एंड टेनोफोविर ये 2 ड्रग्स हैं सिर्फ जो बी कैटेगरी में आते हैं और इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट, मगर जो टेनोफोविर है वो प्रिफर्ड है ड्यू टू हाई जेनेटिक बैरियर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्पेसिफिकली आफ्टर डिलीवरी
हेपेटाइटिस फेलियर होने के बहुत चांसेस हैं, जिनमें 17 to 45% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, खास करके जब आप न्यूक्लियोसाइड एनालॉग स्टॉप करते हैं तो आप मॉनिटर करें ALT के साथ और DNA लेवल के साथ, क्योंकि फेलियर हो सकता है। और यूजुअली फेलियर जो है वो रिजॉल्व होते हैं स्पॉन्टेनियसली, मगर डीकम्पेंसेशन के चांसेस ज्यादा हैं। अगेन क्लोज मॉनिटरिंग इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने डिस्कस किया है, अगेन रिवाइज करते हैं कि कब स्टॉप करना चाहिए एंटीवायरल थेरेपी SSLD के मुताबिक एट बर्थ टू 3 मंथ, और उसमें जब आप बंद करें तो ALT मॉनिटर करें एवरी 3 मंथ टू फॉर 6 मंथ। ईजल के मुताबिक अप टू 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी आप एंटीवायरल दें, उसके बाद बंद करें। अपाजल के मुताबिक NA could be stopped at birth and when breastfeeding start if there is no contraindication to stop nucleoside analogs. ड्रग्स के अलावा भी आप MTCD प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे? वो बियॉन्ड दी ड्रग्स, जैसे डिलीवरी है, अगर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस नहीं है तो वजाइनल डिलीवरी इंडिकेटेड है। आप होली सोली C-सेक्शन की तरफ ना जाए। अगर इंडिकेशन है ऑब्स्टेट्रिकली तो फिर आप C-सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, या इलेक्टिव C-सेक्शन प्लान करें लेबर एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से पहले। क्या है इन्वेसिव प्रोसीजर जो हम प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं, एमनियोसेंटेसिस लाइक, उनके दौरान भी चांसेस हैं कि ट्रांसमिट हो, इसलिए केयरफुल असेसमेंट, फायदा और नुकसान दोनों को बराबर तोलना चाहिए कि कितनी जरूरत है तब करना चाहिए, और ये तब ज्यादा होता है जब मैटरनल DNA लेवल हाई हो। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ईजल कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कंट्राइंडिकेटेड इन सरफेस एंटीजन पॉजिटिव अनट्रीटेड विमेन और on TDF based treatment for prophylaxis. So breast feeding आप दे सकते हैं। इसके अलावा हमें न्यूबॉर्न का केयर करना चाहिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से, और एमनेटिक फ्लूइड हो, म्यूकस हो, ब्लड हो, सरफेसेस पे या कार्ड पे उनको जेंटली क्लीन करना चाहिए। इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस एट बर्थ देना चाहिए, और इंजेक्शन साइट को अल्कोहल स्वाब से क्लीन करना चाहिए। क्या फॉलोअप जरूरी है इन्फेंट का इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस के बावजूद? आंसर है यस। कब करना चाहिए? जब वैक्सीनेशन सीरीज कंप्लीट हो, उसके एक या एटलीस्ट 1 मंथ आफ्टर बी वैक्सीनेशन, लास्ट डोज जो लगता है उनके 1 माह के बाद, या जब बच्चा 1 साल का हो। क्या करना चाहिए? सरफेस एंटीजन एंड anti-HBs लेवल कराने चाहिए। 100 या उससे ज्यादा है तो ये प्रोटेक्टेड है, 10 से कम है तो DNA लेवल करें, DNA लेवल अनडिटेक्टेबल है तो रीवैक्सीनेशन करें बच्चों की 3 डोजेस के साथ। मदर का भी फॉलोअप होना चाहिए, क्यों कि फेलियर के चांसेस हैं और फेलियर से खुदा न खास्ता डिकम्पेंसेशन हो सकती है, इसलिए मदर का फॉलोअप भी जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट के इन्फेक्शन, HBV इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट में, कि इस वक्त अंदाजा ऑलमोस्ट 2 मिलियन न्यू इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों में यंगर देन 5 ईयर्स, और इनका मोस्टली काज जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। WHO के मुताबिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से पहले सरफेस एंटीजन प्रेवलेंस चिल्ड्रेन में 4.7% था। थैंक्स टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अब ये डाउन 1.3% तक आ गया है। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन मोस्टली मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस फेल्यूर है। 1/3 ऑफ केसेस में हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी है, और इसके अलावा
चाइल्ड टू चाइल्ड या हाउस होल्ड या इंट्राफेमिलियल भी है। इसके अलावा जो अदर ट्रांसमिशन रूट्स हैं, इंजेक्शन सेफ्टी है, सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है। जो नेचुरल हिस्ट्री और फेजेस है हेपेटाइटिस बी के बच्चों में वो ज्यादा डिस्क्राइब्ड नहीं है। अलबत्ता एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, फल्मिनेंट इन्फेक्शन, सिरोसिस लिवर और एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिकली किडनी डिजीज, ये सब बच्चों में हो सकते हैं। इसमें ज्यादा नोट करने की बात ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो बच्चे इन्फेक्ट होते हैं, न्यूनेट्स या इन्फेंट्स, 90% केसेस में वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए अडल्टहुड का जो ज्यादा बर्डन है वो यहाँ से आता है। इसलिए इन बच्चों को हमने प्रिवेंट करना है। और MTCT कैसे प्रिवेंट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। और बच्चों में सरफेस एंटीजन लेवल कराएं। 6 माह के बाद दोबारा इन्फेक्शन है, अगर ये कंफर्म हो गया तो उनको दोबारा उनका वर्कअप करा लें। और नॉन इन्वेसिव टेस्ट इसमें मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा कि इलास्टोग्राफी एज कंपेयर टू अडल्ट बच्चों में इतना वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। और लिवर बायोप्सी स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज में वो स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो असेस डिग्री ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट देखने के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंटीवायरल ट्रीटमेंट आप बच्चों में विथ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन मॉनिटर करेंगे। गाइडलाइंस क्या कहती हैं ट्रीटमेंट के लिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का सॉरी बच्चों में? गाइडलाइंस के मुताबिक उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, मगर हर एक ने स्टेज ऑफ लिवर डिजीज को देखने के लिए DNA लेवल, एंटीजन स्टेटस, ALT लेवल विथ ड्यूरेशन ऑफ एलिवेशन कि कितने अरसे तक ये एलिवेटेड रहता है, 6 माह तक या 12 माह तक, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, इनको सब ने इंक्लूड किया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। और जिसमें एग्रीड इंडिकेशंस हैं उनमें सिरोसिस लिवर है, एक्टिव हेपेटाइटिस है, फल्मिनेंट या सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव केस है, इम्यूनोसप्रेशन या कीमोथेरेपी लेना चाह रहे हैं, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव केसेस है और उनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, और पेशेंट्स रिसीविंग ग्राफ्ट फ्रॉम NTHBC पॉजिटिव डोनर्स, इनमें भी आप एग्रीड इंडिकेशन से। ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। SSLD ने एज चुना है 2 से 17 साल, एंटीजन पॉजिटिव बच्चे, और ALT एलिवेटेड कहा है, मगर DNA सिर्फ मेजरेबल, ये नहीं कहा कि इतना होना चाहिए। ईजल ने कि मीट ट्रीटमेंट क्राइटेरिया और उसके बाद ड्रग्स बताई कि कौन से देने चाहिए। WHO क्या कहता है? वो कहता है कि सिरोटिक पेशेंट्स को ट्रीट करें, आइदर सिरोटिक बच्चे जो हैं उनको ट्रीट करें, आइदर कंपेंसेटेड हो या डिकम्पेंसेटेड हो। ALT को छोड़ें, एंटीजन स्टेटस को छोड़ें, DNA लेवल को छोड़ें। जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं एलिवेटेड ALT हो, 6 माह हो या 12 माह हो, एंटीजन पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के स्टेटस के मुताबिक, और DNA लेवल 2000 से ज्यादा हो, और उसके साथ आपने मॉडरेट नेक्रो इन्फ्लेमेशन हो या फाइब्रोसिस हो, या माइल्ड इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस हो, मगर साथ में फैमिली हिस्ट्री हो। इसी तरह अपाजल ने कहा कि सिरोटिक पेशेंट्स को ट्रीट करें, सीवियर रीएक्टिवेशन को ट्रीट करें, और नॉन सिरोटिक में उन्होंने 2 कैटेगरीज रखे, एंटीजन पॉजिटिव और एंटीजन नेगेटिव केसेस में। एंटीजन पॉजिटिव में उन्होंने DNA लेवल मोर देन 20,000 और ALT मोर देन 2 टाइम्स, 1 साल तक बड़ा होना चाहिए, या साथ में फैमिली हिस्ट्री हो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा की, या मॉडरेट और सीवियर इन्फ्लेमेशन हो।
और ई एंटीजन नेगेटिव केसेस में DNA लेवल उन्होंने मोर देन 2000 रखा है और ALT मोर देन 2 टाइम्स, या मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लेमेशन हो उसमें उन्होंने DNA लेवल को छोड़ दिया। अब कौन सी दवाई देनी चाहिए एंटीवायरल थेरापी बच्चों में? कम से कम जो एंटीवायरल थेरापी जो अप्रूव्ड नहीं है इस केस में बच्चों में, वो 2 हैं, एक पेगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b और टेलबिविडिन, ये दोनों अप्रूव्ड नहीं है। बाकी अप्रूव्ड है और इसमें कम से कम एज जो है 1 साल है, जो कन्वेंशनल इंटरफेरॉन अल्फा 2b है उसके लिए 1 साल है। जो एंटाकाविर है और टेनोफाविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट है उसके लिए एज 2 साल है या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेमिविडीन के लिए एज 3 साल है। एडिफोविर और टेनोफाविर अल्फाफिनामाइड आप 12 साल या उसके एज में शुरू कर सकते हैं। एंटाकाविर जो है वो आप पर केजी अगर 10 to 30 kg बॉडी वेट है तो आप दे सकते हैं 0.15 मिलीग्राम पर केजी डेली से दे सकते हैं। अगर मोर देन 30 kg है तो आप 0.5 मिलीग्राम डेली दे सकते हैं। अब हम समरी पे आ जाते हैं कि क्या समरी है उनकी। ये है कि प्री प्रेगनेंसी इवैल्यूएशन एक्सपर्ट से होना जरूरी है। डिस्कशन, काउंसलिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो बहुत मैंडेटरी है टू प्रिवेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन। जो भी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव लेडी है उसको एक्सपर्ट को मिलना चाहिए और उसमें देर नहीं करनी चाहिए। एट बर्थ बच्चों को सरफेस एंटीजन पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज में इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीनेशन सीरीज देनी चाहिए। अगर DNA लेवल लास्ट ट्राइमेस्टर में मोर देन 2 लाख है तो आप TDF शुरू करें। अगर इंडिकेशन है नहीं है लॉन्ग टर्म यूज की तो आप 12 हफ्ते पे स्टॉप कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी, मगर मॉनिटर करें फेलियर के लिए। TDF जो है मदर के लिए, फीटस के लिए सेफ है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी जनरली सेफ है। बच्चों में कौन से ड्रग्स यूज करने चाहिए? एंटाकाविर, TDF और टेनोफाविर, अल्फाफिनामाइड और पेगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2 में आप ये इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का और मुझे बर्दाश्त करने का। थैंक यू वेरी मच। जी उजैर। Thank you very much, sir. Can you please stop share your screen, Dr. Ali Haider? Thank you, Dr. Ali. An excellent presentation. और एको की ब्यूटी ये है कि हर दफा हर बंदा कुछ ना कुछ सीखता है और बहुत सारी चीजें हमने सीखी और अभी इट्स अ ग्रेट जॉब। इससे पहले कि हम डिस्कशन में या क्वेश्चन एंड आंसर पे जाएं, उजैर, आई थिंक वी हैव अ केस आल्सो, अ रिलेटेड केस। Yes, we do have a related case. Should I share प्लीज it? आप स्क्रीन शेयर करें और देन मेरे ख्याल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है तो फिर देन विल आप स्पीकर को भी इनवाइट करें जिन्होंने प्रेजेंट करना है। और Dr. Kainat, are you with me? Yes, sir. Please carry on. So we had a female patient, 25 years old. She came with the complaint of gestational amenorrhea for 2 months, nausea, retrostellar burning, and fatigue. In 2015, she was diagnosed with hepatitis B, for which she had taken HPV treatment for 6 months in 2019. On examination, abdominal examination, she had epigastric tenderness and chest was bilaterally clear. Her family history is that her mother was HCV positive and her brother is HBV positive. There is no history of liver cancer in the family. Previous medical history, she had appendectomy. Her recent investigations are HB 13.3, TLC 10,000, platelet 339, ESR 10, bilirubin 0.5, ALT 19, AST 20, alkaline phosphatase 234,
Albumin 4.4, PTINR 13.6 by 1.0, sugar 119, FP was 1.2, HCV RNA by PCI was negative, HBV DNA by PCI was 1197. Her HBe antigen is negative and anti-HBe antibody is positive. Anti-HTV and anti-HIV both are negative. Ultrasound abdomen was normal. FibroScan was done and it was F0, F1. Now my question is that should we start the antiviral treatment for HPV in this patient? And question number 2 is, can we prevent transmission of HPV from mother to child? And question number 3 is breastfeeding safe in this case? Thank you, sir. Thank you, कायनात. मुझे ये बताएं, आपने हेपेटाइटिस सी पीसीआर लिखा है, अब वो क्यों कराया था? मैं ऊपर मिस कर गया हूँ, ये हेपेटाइटिस सी भी पॉजिटिव था पेशेंट? नहीं सर, पॉजिटिव नहीं था, वो पेशेंट ने अपना करवाया था। वो कह रही थी कि पहले कभी उसका पॉजिटिव आया था लेकिन स्क्रीनिंग पे भी नेगेटिव था उसका, और उसका पीसीआर जब उसका करवाया था तो वो भी नेगेटिव था। अच्छा, तो हमारे पास जो स्क्रीनिंग थी ये पहले का हुआ है इसका, जो हमारे पास स्क्रीनिंग थी? ओके, उज़ैर थोड़ा सा ऊपर जाएं जरा हिस्ट्री पे जो जी। तो मैं थोड़ा सा बस समराइज करूंगा। यंग गर्ल 2 months प्रेग्नेंट और treated for hepatitis B by somebody in 2019 for 6 months, और ये ऐसे ही होता है। और फिर अक्सर वो सडनली बंदा गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट तो दवाई कोई डर के मारे बंद कर देता है कि ये अब नहीं खानी। But there is no family history of liver cancer. Brother is hepatitis B positive, for which the details are not available. Labs look good. Viral load is less than 2000 and it is E antigen negative disease. Delta NHI negative. There's no significant fibrosis. तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर डॉक्टर अली हैदर साहब ने अपनी टॉक में दिया है, स्पेशली रिगार्डिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, उन्होंने बड़ा एडिक्वेटली कवर किया। ब्रेस्ट फीडिंग की भी बात हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है डॉक्टर अली हैदर के, इसको अभी ये 2nd month है, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड विद दिस लेडी? आप इसकी एंटीवायरल ट्रीटमेंट के बारे में क्या डिसीजन लेंगे कि आप स्टार्ट करना चाहेंगे या हम चाहेंगे कि इसको 3rd ट्राइमेस्टर में देख के उस हिसाब से प्रिवेंटिव पॉलिसी के तहत इसको दी जाए? जी डॉक्टर अली हैदर, ओवर टू यू। जी थैंक यू। थोड़ा ये मुझे सिनेरियो दिखाएं ऊपर प्लीज। जी थैंक यू। अब इसमें नो डाउट शी इज प्रेग्नेंट एंड तो ट्रीटमेंट पहले ये इलाज ले चुकी हैं, 2019 में छोड़ दिया। और अभी का जो स्टेटस है, जैसे वायरल लोड इनका कम है, ये एंटीजन नेगेटिव डिजीज जैसे आपने बताया, और इसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है और एपी स्कोर वो भी बेहतर है, और एज कंपेयर टू फाइब्रोस्कैन जो है वो भी F0 to F1 है। अगर इस केस को मैं देखूं तो पहले तो इसको इसके साथ सिटिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग इनको होना चाहिए कि ये एडियर रहे फॉलो अप में। इनका ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके फेलियर हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्लोज फॉलो अप इनका हो सकता है, क्लोज फॉलो अप वो जरूरी है। इसके अलावा जो इनके अगर इनको पहले दूसरे बच्चे हैं तो उनकी टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। फैमिलीज में इनके ब्रदर और मदर का तो बताया हुआ है, मगर हस्बैंड का जो है वो इसमें मेरे ख्याल में जिक्र नहीं है, तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए। आए ट्रीटमेंट की तरफ, तो ये केस एट प्रेजेंट इस 2nd month में ट्रीटमेंट के लिए काबिल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, और हमने ये रिपीट करना है पीसीआर एट द एंड ऑफ 2nd trimester।
अगर उस सेकंड ट्राइमेस्टर में ये इंडिकेटेड हुआ तो हमने एंटीवायरल थेरेपी शुरू कर देनी है। अगर वायरल लोड मोर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हुआ तो वो हमने शुरू कर देनी है। अगर ये नहीं रहा और ये फेलियर भी नहीं होता, स्मूथ प्रेगनेंसी रहती है, तो जो बच्चे हैं आफ्टर डिलीवरी एट बर्थ बच्चों की वैक्सीनेशन विथ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज मैंडेटरी। और उसके साथ आफ्टर डिलीवरी इस खातून की जो है फॉलो अप इनका जो है वो भी जरूरी है कि ये फेलियर ना हो, नंबर 1, और बच्चों का फॉलो अप के वो भी इम्यून हो जाए, इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस फेल्यूर ना हो। जो 2 डीएनए लेवल इसका कम है, बट वो हमें डिसाइड करेगा एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। सो कंक्लूजन, एट प्रेजेंट एंटीवायरल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस एक्टिव एंड पैसिव एट बर्थ जरूरी है, मैंडेटरी है, एंड फॉलो अप मैंडेटरी है। जी, थैंक यू डॉक्टर नुमान जाकिर here. So Dr. Numan Zakir is from PKLI, or I'm sure will be in सारे scenarios. Dr. Numan, are you with us? Yes. जी डॉक्टर नुमान, मैं थोड़ा सा इसी को करूंगा कि अगर हम इसका 3rd ट्राइमेस्टर में हम डीएनए रिपीट करते हैं तो आप देयर आर 2 सिनेरियोज कि इट रिमेन्स द सेम और वायरल लोड गोस above 2000 और मे बी above 20,000 यूनिट, तो आप इसको किस तरह देखते हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज? जी डॉक्टर नुमान। अच्छा, इसके अंदर कोशिश हमारी जो जनरल यानी कि बेसिकली ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो जितना वायरस का लेवल कम होगा उतना मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के इम्कान कम है। तो ट्रीटमेंट का टारगेट भी यही है कि हमें वायरस का लेवल कम करना है बाय गिविंग देम TDF इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। अब ये ऑब्वियसली एट बर्थ वो ट्रीटमेंट जो ट्रांसमिशन का जो रिस्क होता है वो राइट आफ्टर बर्थ खत्म हो जाता है टू द किड, बट क्योंकि आप पिछले 2 या 3 महीने से दे रहे होते हैं TDF, यू कैन नॉट स्टॉप दैट ट्रीटमेंट एज प्रोफेसर साहब हैज क्लियरली एडवाइज्ड के उसके बाद ALT बढ़ने के चांसेस होते हैं और फ्लेयर अप के चांसेस होते हैं। फॉर द फर्स्ट 3 मंथ हमें TDF देनी पड़ती है ऐसे मरीजों के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमें लेवल को कम रखना है। अब आई नो कि 200,000 का ये कट ऑफ प्रोफेसर साहब ने बताइए, बट आई पर्सनली थिंक के वी हैव टू try to get near 0 level of virus जो हमें यानी कि अचीव करना चाहिए वो, which is so like patient entecavir ले रही है for because that was indicated before pregnancy। तो हमें यही बात है जैसे प्रोफेसर साहब ने कही कि हमें प्लान करना चाहिए pregnancy in that patient and transfer them from entecavir to TDF if the patient has been taking entecavir before, because entecavir is obviously not indicated, is not safe in pregnancy। तो ये सारे यानी कि फैक्टर्स हैं जो हमें सोचने, और जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं आफ्टर डिलीवरी उसके अंदर एवरी 4 वीक्स के ऊपर ALT लेवल LFTs हमें मदर के कराने होंगे, एंड जब आप बंद करेंगे उसके बाद भी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है दोबारा से LFTs हमें कराने होंगे टू मेक श्योर कि हम आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट फ्लेयर अप ना हो जाए। ओवर बैक टू यू, थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर नुमान। अब इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। आई एम श्योर अभी हमारे साथ काफ़ी कोलीग्स भी हैं जो पेशेंट्स डील करते हैं। जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, आई एग्री विद यू, अगर 6 मंथ में वायरस प्रेजेंट होगा, मेरी जनरल टेंडेंसी यही होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड टू गिव ट्रीटमेंट एंड बी कंटिन्यू। इसको मैं कंटिन्यू तो नहीं करूंगा, लेकिन जो वही जो स्टॉपिंग वही है कि वंस द पेशेंट डिलीवर्ड उसके 3 या 4 महीने बाद वी कैन सी, और उसके बाद जिस तरह फॉलो अप करना होता है कि फ्लेयर ना हो और जो भी दवाई बंद करने का तरीकाकार है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है
जो मैं आपसे और डॉक्टर अली हैदर साहब और बाकी कोलीग्स भी हैं जो उनसे राय लेना चाहूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है, इसको हमने देखा आज सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आई एम श्योर ये हमारा ट्रस्ट क्लिनिक है जहाँ पे जिस तरह आपके भी लोग आते हैं और हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखते हैं। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये छठे महीने आएगी और आके अपना टेस्ट वायरल लोड कराएगी, और उसके बाद अगर हो गया तो फिर टेस्ट की रिपोर्ट लेके भी बात सुनने आएगी। आप कैसे टैकल करते हैं इस सिनारियो को? फॉलो अप हैज बीन सो पुअर इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन पब्लिक सेक्टर, इवन इन प्राइवेट सेक्टर समटाइम्स, कि हम तो हमारे पास जैसा डॉक्टर गयास साहब कहते हैं ना कि ऐ मौका है कि इन्हें पढ़ लो, क्योंकि इन्हें तो बात आना ही नहीं है। तो आप क्या आई करते एग्री हैं? विद यू। देखिए, हम लोग जो है ना ये करते हैं कि टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा हमें जो है ना, मैं मस्ट से कि वी हैव टू क्रिएट गुड पार्टनरशिप विद पेशेंट। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हमें एजुकेट करना है पेशेंट को, उसको दो चीज़ों की रीअश्योरेंस चाहिए, और एक दो चीज़ों की रीअश्योरेंस चाहिए। उसे ये चाहिए कि भाई जो दवाई कि हेपेटाइटिस बी से बच्चे को नुकसान नहीं होगा, नंबर वन, के जो भी लेवल है जैसा भी है, जब आपको ट्रीटमेंट देना है, जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर वो आपके ऑन बोर्ड आ जाए। नंबर टू, दूसरी बात ये कि ट्रीटमेंट से उसे नुकसान नहीं होगा मरीज को, यानी कि हेपेटाइटिस बी से भी नहीं होगा क्योंकि आपने खुद ने कहा, हम सबको पता है कि सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, दे ट्राई टू स्टॉप ऑल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड टू प्रिवेंट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग विद द बेबी। तो उसको यही समझाना है कि अगर आपके को बेबी को बचाना है इस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से, तो आपको हर महीने आके दिखाना है। somehow we have to make sure। और अगर आपको कहीं पे भी शक हो जाए कि ये नहीं आएगी, आप जैसे गयास साहब कहते हैं वो और बिल्कुल सही कहते हैं, और मेरे ख्याल में हम लोग भी यही कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, कि अगर हमें कोई थोड़ा सा शक हो जाए कि ये प्रेग्नेंट लेडी वापस नहीं आने की, तो हम कहते हैं कि ये आज ही शुरू करा दें, चाहे वो दूसरा महीना हो या चौथा महीना हो। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में कराएं, और उनको कहें कि आप हर जो है ना 1 मंथ के बाद आके LFTs करा के हमें दिखाते रहें, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें खास तौर से शौहर को और उनकी सास को एज एन एलाई इस्तेमाल किया जाए तो ये काम और आसान हो जाता है। थैंक यू। Thank you. Any other comment by our colleagues here present today? क्योंकि ये follow up का सिलसिला जनरल प्रैक्टिस में आप लोग बहुत देखते हैं, and I tell you this is very important. हेपेटाइटिस बी के लिए इससे इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है कि आप बच्चे को बचा लें। वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, और उसके बाद वो बेचारा 20-22 साल की उम्र में, आई एम श्योर हम सब ने देखे हैं बेचारे सिरोटिक्स, लिवर कैंसर और पता नहीं क्या क्या। So this is, very important. And any comments from anybody? Dr. Ali Haider, आप कुछ कहना चाहेंगे दोबारा? जी सर, बेसिकली जो मेन इशू है वो एडहेरेंस और फॉलो अप का वो सबसे बड़ा इशू है, और इस इशू को ज़हन में रखते हुए मेरे ख्याल में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, रिपीटेडली सिटिंग्स की ज़रूरत है, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और उनको इम्पोर्टेंस ये उजागर करने की ज़रूरत है थ्रू रिपीटेड काउंसलिंग, कि अगर ये जो बेबी है वो भी इन्फेक्ट हो सकती है, उस बेबी के बाद वो क्रॉनिसिटी में जा सकता है, चांसेस बहुत 90% है। और इसके अलावा लेटर ऑन उनकी लाइफ मिजरेबल खुदा न खास्ता हो सकती है। तो बहुत ज्यादा एजुकेशन और काउंसलिंग की जरूरत है, और जो एजुकेशन और काउंसलिंग फेल्यूर हमने कोविड में देखा वो आप लोगों के सामने है कि कितना जो है हमारी कौम ये बात समझती है, मगर और 50% ये केसेस हैं जिनकी वजह से MTCT अगर इसको हम प्रिवेंट करें तो अडल्ट के जो केसेस हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस के 50% प्रिवेंट हो सकते हैं। मेरे ख्याल में जो एजुकेशन के अलावा बड़ा मुश्किल है,
और उसके अलावा दूसरी बात, हमारे पास हमारे इस एरिया में अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है कि रिपीटेड मॉनिटरिंग करें, लेवल्स कराएं, विजिट पे आ जाए, वो भी एक बड़ा इशू है। दूसरा बड़ा इशू जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियंस का है कि वो एक्टिवली उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इस केस में, और उनका ये एक रूल होना चाहिए कि सरफेस एंटीजन होगा तो उस लेडी को तब तक वो केयर प्रोवाइड नहीं करेंगी जब तक वो अपने एक्सपर्ट हेपेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से लाइजोन में नहीं रहती। तो ये एक जॉइंट कोशिश होगी मेरे ख्याल में, तो तभी इनका जो है प्रिवेंशन बेहतर